Hi everybody. So guys, this is our third podcast with Miss Pooja Gulati. Who is she? She is a communication coach जिन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को लोगों को in terms of communication and public speaking में ट्रेन कर रखा है. And guys, how you can develop communication skills. And इन्होंने अपना खुद का भी स्टार्टअप स्टार्ट किया था in 2020 बट वो लाइक फेल हो गया. उसके रीजंस क्या थे? अगर आप एक को फाउंडर चूज कर रहे हो, अगर आप अपने एक टीम बिल्ड कर रहे हो, आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी होती है. एंड कुछ बुक रिकमेंडेशंस, इनके लाइफ के डार्क फेज, कुछ प्यारी सी बातें, और यू विल गेट टू नो कि आप कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, इंपोस्टर सिंड्रोम, इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात कर रखा है. सो गाइस, पॉडकास्ट लिटरली बहुत अमेजिंग था. मैंने दिल से खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखी इनसे. एंड येस, वॉच दिस कंप्लीट पॉडकास्ट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. बाय बाय, हैप्पी लर्निंग. Okay, so welcome Pooja to this beautiful conversation. और कैसा चल रहा सब कुछ? Thank you so much, sir, for inviting me. सब बढ़िया चल रहा है. I hope the अरे same for good, you. good. All good. So well, basically conversation बहुत तगड़ा होने वाला है. Hope जो viewers है उनको काफी ज्यादा immense value मिले. बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि who is पूजा गुलाटी? वेल, तो मैं तो आपको जानता हूँ पहले से बहुत अच्छी तरीके से. बट जो viewers है वो नहीं जानते कि पूजा गुलाटी है कौन और उनको क्यों सुनना चाहिए आपको. So एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से. Mhm. So I would like to introduce myself as a learner, not as somebody who has achieved something, but who is a constant learner. Because the moment we feel like we have learned everything, our growth actually stops. So I consider myself as a forever learner. अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, so I am a communication coach by profession. I am a trained certified soft skills trainer, communication coach, and a public speaker. I have an experience for 5 years now, and so that everybody can know, I'm 22 years of age. So I started my journey when I was 17. I explain myself in one line, that is, I started my journey as a failed startup owner, and then to a six figures earner today. Wow. So this is something that I talk about myself. I was bullied when I was there in my school, and that brought my confidence really down. So the journey started from there, and जब मैं कॉलेज में गई तो मैं तो बड़े परेशान हो गई थी कि मैं कहाँ आ कोई गई. नहीं, उस वाले पार्ट में भी आएंगे, इस वाले पार्ट में भी आएंगे. हाँ. So मतलब अभी आप लोगों को सिखा रहे हो हाउ टू बी ए बेटर कम्युनिकेटर, am I right? Yeah. So my basic agenda is so that I can help people to communicate well. Why communication? We will talk about that also in the later questions. But yes, I help people in doing that. My basic motto is that I help brands, individuals, and startups to 10x their scalability by decoding the right formula of soft skills. People know hard skill, technical skills सबको आ जाते हैं, YouTube पे हर जगह मिल जाते हैं. But in order to ace your soft skills, that is your communication, your team building, how to build that interpersonal relationship. अगर मैं हम दोनों की बात करूं, हम शायद अपनी लाइफ में एक बार ही मिले हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक इंटरपर्सनल कनेक्शन हमने किया है एक प्रोफेशनल बेसिस पे, दैट हैज लीड अस टू ग्रो इवेंचुअली. आपकी वजह से आई हैव आल्सो क्रैक्ड अ वेरी ग्रेट बिजनेस डील, एंड that's how it goes. So I believe relationship building is also very important, which most of the students don't know about. So yes, this is all about I agree. वाओ. मैं थोड़ा सा बोला तो बहुत ज्यादा हो गया, बट स्टिल आई गेस ये बहुत कम है भी राइट नाउ. स्टिल टेल अस अबाउट योर अचीवमेंट्स. ठीक है, वेल आई ऑलरेडी नो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपके अचीवमेंट्स के बारे में. बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, एक बार क्विक. My achievements, I started from very early. So I was invited as a chief guest at my own school from where I did my education, and where I Wow. was bullied as well अरे at वाओ. the age of 19. अच्छा, I उन लोगों का कैसा फेस रहेगा जिन लोगों ने बुलीड किया था? So actually जब मेरे को इनवाइट किया गया था तो वो स्कूल वालों के पास पहुंच गए थे कि पूजा को क्यों इनवाइट किया, हमें इनवाइट करना चाहिए था. So that happened, and then I have been featured with Dainik Jagran, Punjab Kesari multiple amount of times. These are newspapers. I have worked very closely with Ministry of Women and Child Development, Ministry of MSME, Ministry of Textile. And then I have been top 100 women faces of India in 2019. I was the senior panelist in the Nirbhaya's
डेथ एनिवर्सरी ऑन 16th of December 2019. एंड यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट है जो मैं आगे बताऊंगी, विच will definitely motivate a lot of people to do something incredible in their life. Then I have completed 250 plus live webinars in a span of 365 days. I have coached 30,000 plus people. I have given my physical presence at 100 plus places as a public speaker. I have been live with the DD News, which most of the people don't know about. So I have done that as well. So यही कुछ छोटा मोटा किया है मैंने अपनी जिंदगी में. ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या क्या कर रखा है पूछा ने. अरे मैन, लाइक सीरियसली बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है. मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे. ओके, लाइक मैं सिंपल बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वेल अभी लोग आपको बारे में जान चुके हैं. आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स, लाइक वेरी फ्यू गर्ल्स मैं ये बोलूंगा कि जो कि एक्चुअली इनिशिएटिव लेती है या फिर कहीं पार्टिसिपेट करती है किसी कॉम्पिटिशन में किसी जगह पर. अगर आप एक कॉलेज में हो, एग्जाम्पल लेके चलता है कि 50-50 का रेशियो है गर्ल्स का बॉयज का, ठीक है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है. 30-20 गर्ल्स होगी, 25 गर्ल्स होंगी और 70% का जो रेशियो का बॉयज का होगा. एंड स्टिल वहां पे कोई कॉम्पिटिशन है, कोई भी चीज है, और वहां पे बोलेंगे ना कि आप स्टेज पे आके कोई स्पीच दो या कुछ बातें बोलो, तो वहां पर जो बॉयज होंगे, सपोज करो कि वहां पे 70 में से 30 बॉयज आ रहे हैं, बट वहां पे 25 में से एक दो ही होंगे जिनका हाथ खड़ा होगा. ऐसा एक्चुअली होता क्यों है? लाइक गर्ल्स मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बट स्टिल अगर मैं जानता हूँ 10 ऐसे लोगों को जिनका माइंड बहुत शार्प है, बट बस एक को जानता हूँ जिसका माइंड बहुत शार्प है. ठीक है, मतलब कि गर्ल्स में ना बहुत लाइक यू गॉट द क्वेश्चन राइट. I got your question, and I believe this is a question which is the need of an hour, because हमें जो females होती हैं, we females, because of the societal, I would say, barriers and stigma, from the very early age, बच्चा एक लड़की पैदा होती है तो माँ बाप in the middle class family or in the Indian families, yes they are happy कि चलो वो अपने आप को ना, हर उनके सब घर वाले, लड़का होता है तो खुशी मनाने आ जाते हैं, अरे तुम्हारा तो लड़का हुआ है. लेकिन लड़की आती है तो उसको कंसोल करने आ जाता है माँ बाप को, कोई बात नहीं लक्ष्मी आई है. तो वहीं से जो एक डिस्पैरिटी शुरू होती है ना, तो वो वहीं से होती है. माँ बाप के घर में बच्ची पैदा होती है तो एक अलग से एक माइंडसेट आ जाता है कि यार दहेज देना पड़ेगा, उसके फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा. वहीं अगर लड़के के लिए होता है तो इतनी हम लोग फर्दर सेविंग्स के बारे में सोचते नहीं है. लेकिन एक फीमेल के लिए पेरेंट्स बचपन से ही बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो आई बिलीव वो जो एक एज अ बर्डन जो एक फीमेल को लिया जाता है और उसको जो एक ओपननेस नहीं दी जाती है हमारी सोसाइटी में, here I would like to say I am very blessed to be born in a family wherein my parents actually uplift me a lot in a lot of ways. Like मैं गोवा गई थी, अकेले गई थी, for 7 days I was there. My parents sent it there to me. मैं दिल्ली में थी, हम लोग साथ ही में थे, सारा हमारा ग्रुप था, 2-3 दिन के लिए हम वहीं थे. तो माय पेरेंट्स एक्चुअली पुश मी अप. बट ऐसा सिनेरियो हर एक फीमेल के साथ नहीं होता है. एंड वो धीरे धीरे जब आप स्कूल में भी जाते हो तो लड़कों को बोला जाता है तो लड़की की तरह लड़कियां ऐसे रोती है, तो वो जो एक कंपैरिजन ऐसा आ जाता है ना. और आई वुड से दिस इज अ वेरी ब्लंट रिमार्क फॉर अ मेल एज वेल, बिकॉज मेल ऑल्सो हैज एन इमोशंस, राइट. ऐसा इमोशंस का कोई टैग नहीं है कि फीमेल के पास है और मेल के पास नहीं है. तो एक फीमेल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं वो जो एक माइंडसेट बैरियर्स की वजह से बहुत ज्यादा कम है कि फीमेल को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सप्लोर करती नहीं है. बचपन में सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी तो वही खिलौनों से ही हो जाती है कि एक बच्ची है तो उसको किचन सेट ही मिलेगा. क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? वो जो एक माइंडसेट डेवलपमेंट है ना, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा एक स्टिग्मेटिक होता है. अगर आपको, इवन मेरी फैमिली में जैसे मेरे जो रिलेटिव्स है वो भी ये कहते हैं लाइक आई एम वेरी पुअर विद किचन, मुझे किचन का कोई काम नहीं होता. कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि पूजा तुम्हें ये आना चाहिए वो आना चाहिए. वाई? बिकॉज मेरा फोकस हमेशा पढ़ाई में था और अपने आप को ग्रो करने में था. लेकिन आज भी कभी रिलेटिव्स आते हैं घर में तो वो कभी बोलते हैं पूजा चाय पिला दो, तो मुझे नहीं आती है, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दैट. तो वही एक आता है कि आगे जाके क्या होगा, ससुराल जाके क्या होगा. तो वो जो एक स्टिग्मा एक फीमेल लेके चलती है, तो वहीं से उसकी जो एक पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हो जाता है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट वी सी वेरी लेस फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ही बहुत ज्यादा कम होती है. अगर आप एक जॉब में भी एक फीमेल होती है, उसको अपनी हाइक लेने के लिए भी बहुत वो बोल ही नहीं सकती कि भाई मुझे हाइक चाहिए. अ फीमेल एक्चुअली वो अपने ही दिमाग में अपने लिए एक जेल बना देते हैं, एंड उससे निकलने के लिए दे नीड राइट एनवायरमेंट, दे नीड राइट पीपल, एंड दे नीड people those who can uplift them. Now here comes the beauty of online era. Every information is on your tips. You decide that what kind of content you wish to see.
Like हम लोगों ने भी एक डिसीजन लिया था, like Sid is doing incredible in affiliate marketing, he's doing fantabulous there. Even I am trying my level best so that I can inspire more and more people. But it depends upon the people, those who are working with Sid, कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हाँ हमें इस जैसा इंसान जैसा बनना है, और Sid ने भी एक डिसीजन लिया था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है. Similarly, I would like to say this thing, Sid, कि our life is a distance between B to D. ABCD होता है ना, तो B मतलब you born, D मतलब you die, C Wow. means the choices. Okay, 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 C means okay. the choices. Like what choices do we make determine what's it's going to happen. आपने एक choice लिया था कि हाँ मुझे affiliate में कोई एक risk लेना है अपनी जिंदगी में, and that made you to reach up till 18 lakh rupees within a span of 365 days, which it is actually impossible for a lot of people because वो mindset ही नहीं होता है. Similarly, if I talk about myself, मेरे पास भी हर एक दिन failure आता है, लेकिन वही फिर एक mindset ऐसा develop हो गया, कोई बात नहीं, होता है, चलता है. We are a work in progress. We are not a complete highway नहीं बन गया है हमारा. We are not a complete highway. It's a work in progress. तो गड्ढे तो आएंगे ही, उसको फिल करके फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचना है. I would like to add one thing basically. मैं एक podcast देख रहा था कुणाल शाह का, like I'm a big fan of कुणाल शाह, and उनका एक मैंने क्यूट भी देखा था कि चाहे कितने भी यूनिकॉर्न्स आ जाए इंडिया के अंदर, अगर दो चीजें ऐसी हैं, अगर उस पर काम नहीं किया जाएगा ना, तो भाई इंडिया हमारा कभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा. पहला क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक बंदे के पास में. सेकंड क्या है कि लाइक गर्ल्स का पार्टिसिपेट करना, या फिर लाइक फीमेल पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर बेसिकली. अब यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में काफी ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो बहुत जॉब्स में, बिजनेसेस में, बट वहीं पे इंडिया में क्या है, बहुत कम है, ठीक है. कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी गर्ल्स को लाइक बढ़ावा नहीं दे रहे हो, बढ़ावा इन द सेंस का मतलब उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने हम इंडिया की ग्रोथ कम कर रहे हैं. ओके ठीक है पूजा, मैं समझ गया बेसिकली इसका रीजन क्या है, बट नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन एज ए इंडिविजुअल और एज अ कंट्री और एज अ कम्युनिटी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? Right. So what has been done cannot be undone. That is something I we have agree. to accept first. The road to success is acceptance of what is done, and then the next step that we have to take is what can be done to improve ourselves. So I would say every female needs to have this thing that you are not less than anybody. You need to just come out of your comfort zone. I would like to say there are such living examples of all these things. Abhi Lata Mangeshkar, she passed away a couple of days back. She was a legend, and I was listening to one of her interviews. तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि even a female, when she was the elder one among us, all the brothers and sisters, when she was 10 years of age, she decided that she will be leading the family. She left her education, she left everything, which shows that female is not less than anybody, which actually shows that she was a living example for that. A female can do everything. There's a Durga in each and every female. We celebrate Durga Puja every single year, which actually signifies one thing, that yes, there is a Durga that is inside of us, but we need to, just find that Durga, to actually do that in a very good way. हमारे पास अगर गॉसिप का टाइम होता है तो हम बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए निकालते हैं ना. हमारे पास कहीं शॉपिंग जाने का टाइम होता है, हम निकालते हैं, हर एक फीमेल निकालती है, शादी में जाके तैयार होना करते हैं, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में कुछ एडिशन नहीं करते, उल्टा सब्ट्रैक्शन ही करते हैं. मैं एक चीज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, नीड टू गैल्वनाइज योर ब्रेन विद पॉजिटिविटी, यू नीड टू गैल्वनाइज योर ब्रेन विद विजन. आपको अपना विजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपका. आप एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी सर, कि द पीपल दोज हु डाइड टुडे मॉर्निंग had plans for today evening. The people who died yesterday night had plans for today evening. If you are here for a purpose, you are here for a purpose, and you have to identify that, because भगवान के पास इतना टाइम नहीं है फ्री में किसी को ऑक्सीजन दे रहा है. Exactly. Right? तो अगर अभी कोविड भी हुआ था, still I believe we all people are so blessed that we are alive, we are healthy. And अगर भगवान ने आपको, even if you got COVID, even if anything bad has happened in your life, my condolences is with you. But still you have to remember, but you are alive. You are alive. Even if because of all this pandemic, you are still alive. So you are here for a purpose. Every female has this right to identify why is she here. You are not here to just get married, have kids. उन बच्चों को बड़ा करने तुम यहाँ पे नहीं आए हो. You are here for a bigger purpose. You just have to have that gut in you. वो रिस्क लेने की पावर होनी चाहिए. वो रिस्क तुम धीरे धीरे लो. मैं ये नहीं कहती एकदम से तुम पहाड़ पे चढ़ दो. That is not how it's done. Take small risk. वो रिस्क कैसे लोगे? Try to do something new every single day which you have not done. That will boost up your confidence. Maybe it can be drawing, maybe it can be singing, maybe it can be dancing. Try to evolve yourself.
अपने घर बैठे बैठे भी आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो। अब तो ये भी रीजन नहीं है यार कि मेरे को बाहर जाके कुछ सीखना है। आजकल तो ग्रेजुएशन घर पे हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन घर पे हो रही है, पीएचडी घर पे हो रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट होम। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी नहीं है बेसिकली, लाइक देयर आर फ्यू गर्ल्स जो लिटरली करना भी चाहती हैं, ठीक है, राइट नाउ बिकॉज ऑफ दे आर वाचिंग गुड कंटेंट, ओके, बट द थिंग इज कि जो उनका सराउंडिंग है ना, चाहे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कहीं ना कहीं हम लोगों का या फिर उन लोगों का माइंड प्रिपेयर करता है कि नहीं यार आपको नहीं करना है, आप क्यों कर रहे हो इस चीज को, 3-4 साल बाद तो जाना ही तो है कहीं पे, वो जो करेगा आपका हस्बैंड करेगा वो। तो ये क्या होता है हमारे, इवन मैंने अपनी फैमिली में भी देखा हुआ ये सारी चीजें, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। इवन लाइक जो मेरे फादर थे तो लाइक वो उतना बढ़ावा देते नहीं थे कि दीदी जाए जॉब करने के लिए, बट एक ऐसा टाइम भी आया कि जब करना पड़ गया उन चीजों को लेकर। बट जो मेरी मम्मा का माइंडसेट आज से कम 7 to 8 ईयर पहले था, वो तो लाइक गांव वाला माइंडसेट था। बट राइट नाउ शी इज टोटली ओके। अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे जाके बाहर रहना कहीं पे दीदी के साथ, दीदी कहीं बाहर जाके रहना है, शी इज टोटली ओके। उन्हें ट्रस्ट है हमारे ऊपर और उन्हें पता है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। तो मेरे सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम। सी एक और चीज यहाँ पर ये बोलूंगा मैं, एक और ऐड करूंगा, like just using 4 to 5 words you can't change your parents mindset। उनका 42 साल का माइंडसेट है भाई, इतना स्ट्रांग है, आप कैसे चेंज कर पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को लेकर, राइट। वाह, बहुत यहाँ पे लाइक मैं एक चीज बताती हूँ। जब मैं भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रिजिड थे। एवरी पेरेंट मेरा बचपन का विजन ये था कि पूजा यू विल डू ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं एमबीए इन एचआर करूंगी एंड देन आई विल गेट एन एचआर जॉब, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से तोड़ थी। तो लगता था कि हाँ इंटरव्यू वगैरह तो करवा ही लूंगी लोगों पे, तो हाँ टैलेंट एक्विजिशन में जाऊंगी, एचआर में तो वही करूंगी। लेकिन जब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चला ना, तो मैंने एक चीज करी थी जो मेरे को सिखाई गई थी किसी से। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं टेस्टिमनी वीडियोस जो बहुत सारे क्रिएटर्स डालते हैं बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, मैं उसकी वीडियो ना स्पीकर पे चलाती थी, सुनती मैं भी थी। और उससे क्या होता था, इनडायरेक्टली मेरे मम्मी पापा भी सुनते थे। मैं कोई ऑनलाइन सेशन अटेंड करती थी, मैं उसको स्पीकर पे लगा के सुनती थी। तो उससे हुआ क्या, धीरे धीरे मेरी मम्मी ने बोला अगर वो ऐसे कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकती। वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। इनडायरेक्ट आप कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी है, आप सक्सेस स्टोरीज चलाओ। आप किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की जिस भी कम्युनिटी का पार्ट हो या नहीं हो, सो वी आर हियर टू बिकम टू एक्चुअली गाइड यू। सिड इज देयर, आई एम देयर, सो बिकम अ पार्ट ऑफ गुड कम्युनिटीज। और जब भी आप उनके सेशंस अटेंड करते हो, पुट इट ऑन स्पीकर, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुनेंगे ही सुनेंगे। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये मैंने कर रखा है घर में, बट कभी मैंने इसको तो नोटिस नहीं किया। लाइक मैं कोई अगर वीडियो देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ना ये बनाना चाहिए मम्मा को भी और दीदी को भी, तो मैं उसको अपना निकाल देता हूँ, फिर मैं चलाता हूँ, सुनता रहता हूँ पे। मुझे पता कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग सुनेंगे। ये चीज मैंने भी अप्लाई करी है एंड आई जेन्युइनली से कि और लोग भी करते होंगे, तो उन्होंने कभी इतना नोटिस नहीं किया इस चीज को, और मैंने भी कुछ नया सीख लिया। इट्स रियली गुड। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू करो उस चीज को। हाँ, सो वही मैं यही कह रही थी कि आपको ये नहीं है कि मैंने एक दिन चला दिया, अगले दिन नहीं चलाया, फिर अगले दिन चलाया, फिर ये आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। इट टेक 66, ये लोग कहते हैं 21 दिन में हैबिट बनते हैं, 66 days टू क्रिएट अ हैबिट। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है, हमें जीते जी 22-23 साल हो गए, तो उतना टाइम से, और 22-23 साल तो इस जन्म में हुए हैं, इसके 5 जन्म का भी हम लोग इतना सारा रिकॉर्डिंग लेके आए हैं अपने साथ। तो ऐसा भी होता है। yes, there is a past life creation, because see, this is what we have to understand, because when somebody dies, we say may his soul rest in peace, we don't say may his body rest in peace. So this is the difference. तो हमारी जो सोल की जर्नी है, तो वो कभी एंड नहीं होती। हमें नहीं पता है हमारा ये सोल पहले कहाँ था, लेकिन था तो सही। कभी कभी होता है ना, हम कहीं जाते हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं, कभी ये साथ मेरे साथ हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ होता है। वो आई रियली बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। सो आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है कि आपको ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करने में यू नीड गुड 66 days एंड विद कंसिस्टेंसी कि 1-2 घंटा आप इस चीज को दोगे। माइंड में पीपल, दिस विल वर्क लाइक अ मिरेकल। मैंने सुना है ऐसा कि अगर आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है, उसके लिए आपको 5000 घंटे देने होते हैं, और आई गेस 5 साल के अंदर 10 या 15,000 घंटे होते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुन रखा है यहाँ पे। हाँ, ये भी होता है। और उस स्किल सीखने के लिए नहीं, उस स्किल को मास्टर करने के लिए। ओके, मेरा हाँ एग्जैक्टली, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा कि मैं ये नहीं पूछने वाला कि लोगों को क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, मैं ये पूछूंगा आपने कैसे डेवलप किया, क्या जर्नी थी, हुआ से मेंटोर, आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या ये लाइक बर्थ से था कि आपने पैदा होते एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश और स्पीकिंग करना चालू कर दिया था, तो फिर क्या जर्नी क्या था?
हाँ, सो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ. आई हैव ऑलवेज माई एजुकेशन हैज बीन डन विद अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड. लाइक हमेशा कॉन्वेंट, सिस्टर्स, नन्स, फादर्स के बीच में मैं पढ़ी हूँ. तो वो जो एक मेरा, और जहां से मैंने अपने प्ले स्कूल की एजुकेशन करी थी, तो दैट टीचर वाज अ कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर. जैसे मैं प्ले स्कूल, और जब मैं अपने स्कूल में गई थी तो वहां पे भी सारे टीचर, सारे कॉन्वेंट स्कूल में सारा इन्वायरमेंट ही एकदम इंग्लिश वाला होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा पर्सनालिटी थोड़ा पॉलिश्ड है या कम्युनिकेशन थोड़ा पॉलिश्ड है, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच आई वाज गेटिंग टीच्ड. सो वो एक सोर्स ने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन वही बात आती है जो मैं कह रही थी कि इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी टीचर आती है, 40 मिनट बाद चली जाती है. आपको स्कूल का 8 घंटा अपने उन लोगों के साथ बिताना होता है जिन लोगों के साथ आप बैठते हो, जिसके साथ आप रिसेस में खाना खाते हो, जिसके साथ आप गेम्स के पीरियड में आप बैठते हो या खेलते हो. और वही अच्छे नहीं थे, वही अच्छे नहीं थे. तो उसकी वजह से जो एक जील था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया था. तो हमेशा आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट बेंचर. हमेशा फर्स्ट बेंचर थी मैं. 6th क्लास में चश्मा लगा के बैठ गई थी. अभी तो मैंने लेंस पहने हुए. तो ऑलवेज द फर्स्ट बेंचर. आई यूज्ड टू स्कोर, आई यूज्ड टू, मतलब टॉप 3 में ही रहती थी मैं हमेशा. ऐसा था मेरा. तो बट ये था कि हाँ, मतलब दोस्त नहीं थे, बुली ये वो सब कुछ था. तो वो जो एक अंडर कॉन्फिडेंस था, दैट गॉट रिमूव्ड when I understood this thing that in order to grow in your life you have to work on yourself. आपने कभी कॉलेजेस में देखा होगा सेट कि कॉलेज में लिखा होता है कि ये हम कोर्सेज ऑफर करते हैं, 100% प्लेसमेंट ऑफर. उसके नीचे एक छोटा सा स्टार लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, छोटा सा एकदम कोने पे. देखा कभी? मैंने देखा नहीं है. हाँ, what does that mean? That means that college will try its level best to bring companies on board, but it doesn't take guarantee that your child will be placed or not. बिकॉज इंटरव्यू में तो वो तो गुट्टी पढ़ा के नहीं भेजेंगे ना एचआर को, भैया ये वाला बच्चा प्लीज कर देना, ये बच्चे ने बोला था कि मैं तभी एडमिशन लूंगा जब मेरी प्लेसमेंट होगी. पूजा की जॉब लग जानी चाहिए. हाँ, इसकी जॉब लग जाती है. ऐसा तो नहीं होता है. तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो पैरामीटर है ना, वो तब समझ आया मुझे जब मैं कॉलेज में गई. और कॉलेज में भी आई वॉज ऑलवेज वेरी मच इनटू वुमेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो वुमेन एनहांसमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट. तो कॉलेज में जाते हो तो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में इंटरव्यू देने गई थी, रिजेक्ट मार दिया उन्होंने मुझे. तब से मुझे एक जील आया कि यार अपने आप को ग्रो करना है. एंड देन आई टुक माय सर्टिफिकेशन, फर्स्ट सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल हाई कमीशन न्यू दिल्ली एज अ सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर. वहां पे my certification was for 3 months and I'm very happy to say I was the first ranker in the entire batch for approximately 100 students. सबसे कम मैं ही बोलती थी और आखिरी दिन पे मैं ही छक्के छुड़ा दी. तो ऐसे कुछ था. तो मैंने जो प्रैक्टिस करी थी वो प्रैक्टिस था, फर्स्ट वाज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम अ राइट सोर्स, नॉट टेकिंग. अब देखो यूट्यूब पे अब बहुत सारे बच्चे. वो राइट सोर्स क्या था? वो राइट सोर्स था अ सर्टिफाइड सोर्स, ब्रिटिश काउंसिल, अ मेंटोर. तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम कम्युनिकेशंस के लिए तो सीखनी है, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है. आपके पास भी आते होंगे लोग, एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, सेल्स सीखनी है, यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट पर्सन विल नॉट कस्टमाइज हिज नॉलेज फॉर यू, सो दैट आप, वो एक जनरलाइज वीडियो बना रहा है, वो आप देख रहे हो, आपका नीड अलग है, आपका समझने का तरीका अलग है. You cannot rely on a source which is there on YouTube. Yes, YouTube is very good. I am not saying it is bad because it has created a lot of outrage of knowledge to a lot of people. जिसके पास शायद कुछ भी नहीं था knowledge के लिए, it has done that. बस अपने skill को upgrade करने के लिए you need knowledge from a certified source. इसके बाद एक्सपीरियंस है. आजकल के बच्चे 1 महीने में सीख के आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, चलो अपना YouTube चैनल चलाते हैं. होता है, इट हैपेंस, एंड लोग उनको फॉलो करने लगते हैं. व्हाट एक्सपीरियंस, आपने कभी उनका बैकग्राउंड चेक किया है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कितना लोगों को ट्रेन किया है, उनका सक्सेस रेट क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, किसी ने उनको एक्नॉलेज किया है कि नहीं किया है, कोई कहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशन लिए, कितनी लिए, क्या है, कुछ भी हम वेरीफाई नहीं करते, हम सिर्फ हेडचाल में चले जा रहे हैं. सो एक इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताती हूँ सेट. व्हाट्स योर एज? 21. You are 21. For example, you start taking coaching by me. आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है. Done. Okay. हाँ, exactly. 20 साल का एक्सपीरियंस है. अगर आप मेरे साथ 1 महीना कोचिंग लेते हो, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस, बहुत सारे कोचेस को हटा दो, सिर्फ मैं अपनी बात करती हूँ, 21 + 22 साल, 43 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है आपको. Exactly. घर में सारी चीज सीख पाता हूँ तो. So Definitely आप सिखाओगे भी. तो बहुत कुछ सीखना है यार. So
this is something that people don't understand. So the first way was to get our information from a right source. Second was extensive practice. Extensive practice. And third thing which I applied in my life was knowledge without implementation is zero. I completely agree. Practice like प्रैक्टिस अभी मैं आती हूँ. बहुत सारे बच्चे सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, प्रैक्टिस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, एंड देन दे कम टू अस एंड से कि मैम मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा. फिर हम उनसे जब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, फिर बोलते हैं अच्छा हम तो भूल गए थे. तो नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो. प्रैक्टिस का मतलब ये था कि जो भी नॉलेज मुझे मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज ग्रुप डिस्कशन की नॉलेज मिली, मुझे आज वीडियो क्रिएशन की एक नॉलेज मिली, तो मैं उसके 10 दिन वेट नहीं करूंगी उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बनाने का, अपने आप को पॉलिश करने का. दैट वाज द सेम डे आई यूज्ड टू गो होम एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दोस स्किल्स. And I will also tell you one thing. हमने quotation हमेशा सुना है कि practice makes a man perfect. Why not women? हाँ जी. Why not women? हाँ, practice makes a man perfect, and women, yes, whatsoever. But I would like to say, practice doesn't make a man perfect. Perfect practice makes a man perfect. Okay. Practice, for example, वो होता है ना, एक निशाने लगाने वाला वो एक वो होता है, हम उस पर डार्ट फेंकते हैं. तो मेरे को उसके पिन पॉइंट पे फेंकना है, विच इज द टाइनीएस्ट डॉट जो सेंटर पे है. मैं तो डार्ट मार रही हूँ ना, मैं उसमें मारी जा रही हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो कहीं पे भी लगे. लेकिन जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगी कि वो एकदम बिल्कुल सेंटर पे लगे, तब तक तो मेरी प्रैक्टिस मेरे को परफेक्ट नहीं बनाएगी ना. सो दैट इज तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड वुमेन आल्सो. So, ये हमें सोचना चाहिए. उसके बाद एक और चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था मेरी कम्युनिकेशन जर्नी में, वाज कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन सीखा, अगले दिन छोड़ा, उसको छोड़ दिया. तो देयर वाज अ कंसिस्टेंसी. जब कंसिस्टेंसी आती है तो अपने आप को ग्रो करते हो. एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेड, आई एक्चुअली स्टार्टेड सिटिंग विद पीपल आई वांटेड टू बिकम लाइक. वाओ. और वो लोग कहाँ से मिले आपको? ब्रिटिश काउंसिल. ओके, मतलब आपको एक बेस्ट कम्युनिटी फाइंड करनी है, सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये है. राइट. अब ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी मैं बात करती हूँ, सो मोस्ट ऑफ द पीपल फील लाइक माय एक्सेंट इज नॉट दैट पर्टिकुलर हिंदी वाला एक्सेंट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज मेरी जो एक पॉलिशिंग हुई है कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो एक ऐसे उसमें हुई है जहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट का यूज होता है, बहुत तगड़ा वाला. तो आपकी जो कम्युनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो. वहां पे मेरे मेंटोर थे, आई क्लियरली रिमेम्बर हिज नेम, शशि. ठीक है. ओके. So he believed in me like anything. Even today he calls me up and he really tells कि पूजा पूरे बैच में तुम ही हो जो कुछ कर रही है अपनी जिंदगी में, बाकी तो सीख के चले गए. अच्छा, मैं पे एक सेकंड होल्ड करूंगा पूजा. लाइक राइट नाउ यू थिंक कि अभी आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर हो, राइट? ठीक है, मतलब किस स्टेज पे आपको ये रियलाइज हो गया था कि हाँ मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हूँ? जैसे आपने बोला कि जो हाँ मुझे समझ में आया, मोस्टली आपको जो कम्युनिकेशन डेवलप हुआ वो आफ्टर आपका 12th हुआ. एम आई राइट? क्योंकि 12th क्लास में आप एक बैटर थे या फिर आप एक इंट्रोवर्ट थे या फिर नहीं बोलते थे? 12th में कैसे था आपका? आई वॉज कंप्लीटली, मतलब इंट्रोवर्ट ही मान लो तुम मुझे. मतलब ऐसा ही था मेरा, चुप चुप रहना, फ्रंट पे जाके चुपचाप फ्रंट सीट पे बैठ जाना, जो लेसन सिखा रहे हैं उसको सीख लेना, कुत्तों की तरह पढ़ाई करना. अरे and that is why I scored 94.5% in my 12th standard. तो हाँ, so बहुत I am very studious, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है. एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आजकल के जमाने में I have seen one more thing that people actually spread very bad word for formal level of education. But you have to understand one thing कि आप कहीं खड़े होते हो ना, आप शार्क टैंक देखा होगा किसी ने. शार्क टैंक में जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, वो एक चीज पूछते हैं कि आपने आपकी डिग्री क्या है. आपका स्किल के साथ आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है. डोंट लेट योर फॉर्मल एजुकेशन गो इन वेन पीपल. इवन लास्ट वाला पॉडकास्ट कहते हैं मैंने किसके साथ, वहां मैंने ये बात किया था कि लोग बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे ना बहुत ही मिसअंडरस्टिमेट करते हैं फॉर्मल एजुकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वहां से आप सीखना, बहुत चीजें होती है वहां पे. इवन मेरा भी एक रिग्रेट रहेगा लाइफ का कि मैं कॉलेज जा नहीं पाया. ठीक है, मेरे तो 82 मार्क्स यार, लाइक 12th में. आप दिल्ली में ही हो, आपको पता ही है कि डीयू में तो कुछ होता नहीं 82 मार्क्स के साथ साथ, है ना. आई मीन कि कोई कॉलेज नहीं मिला था. एक और क्वेश्चन है पूछा मेरा. वन पर्सन इन माय टीम, मैं उसका नाम नहीं लूंगा बेसिकली, बट थोड़ा सा वो गांव इलाके से है. उसका टोनालिटी आपको पता चले कैसा टोनालिटी उसका, यूपी से है वो बंदा. वो अब होता है कि जब भी वो प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है, सेल्स कर रहा है, तो वहां पर दिक्कत क्या, उसका टोनालिटी फैक्टर ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब आप ये बताओ कि कोई पर्सन जो गांव से है, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं फर्क आता है.
सो क्या वो टोनैलिटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है? वो उनके माइंड में बस एक मिथ है। सेकंड चीज ये, अगर वो एक मिथ नहीं है तो कैसे वो उसे सही कर सकता है? तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट यू सिड कि जो आपने वर्ड यूज किया टोनैलिटी, टोनैलिटी कम्युनिकेशन में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। जो आप बोलना चाह रहे हो दैट इज नेम्ड एज MTI, दैट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस। ओके, वाओ, ये तो पता ही नहीं था। टोनैलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस। मेरी बात टोनैलिटी का मतलब क्या होता है? हम्बलनेस। हम्बलनेस, टोन मतलब मेरी बात करने का लहजा कैसा है, ओके, दैट इज टोनैलिटी, टोन ऑफ वॉइस। मॉड्यूलेशन अप डाउन में कैसे ऊपर वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, हाउ यू चेंज द पिच ऑफ योर वॉइस। ओके, मतलब आज तक मैं गलत था। लाउडनेस, फॉर एग्जांपल लाउडनेस, फॉर एग्जांपल बीइंग वेरी पोलाइट, दिस इज वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, आपने बोला मदर टंग इन्फ्लुएंस, ऐसा होता है ना कोई बंगाल मदर टंग इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है? अब जैसे आपने बोला बच्चे गांव के होते हैं, उनका मदर टंग वहां पे फॉर एग्जांपल कोई बंगाली है या बिहारी है या कोई पंजाबी है, तो जब वो अपनी नॉर्मल इंग्लिश में बात करता है ना, उसके एक्सेंट में उसकी भाषा नजर आती है, हमें पता चल जाता है कि इस रिलीजन या इस कल्चर से बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। ओके, गॉट इट। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाँ, सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो लोगों के उसमें ना सबसे बड़ा एक बचपन से ही लोग उनको बोलने लग जाते हैं कि यार तेरी ना आवाज कितनी अजीब है, या वॉइस इज सो अजीब तेरा, मतलब लड़कियों को भी कुछ लोगों की लड़कियों की आवाज ना बहुत होर्स होती है, बहुत तीखी होती है, तो उनको भी बोलने लगता है तेरी तो मर्दों जैसी आवाज है। ऐसा होता है, दिस हैपेंस। एग्जैक्टली दिस हैपेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी पर्सन इज यूनिक। योर टोन, योर MTI, your accent, everything is unique. You are you. You are you. YOU. You are YOUNIQUE. You are not पूरा unique हो तुम. First of all, accept yourself just the way you are. Then identify कि हाँ मुझे इस चीज को अपग्रेड करना है। जो भी बच्चे अपने जो कि villages में रहते हैं, I 100% want you to become really successful in your life. But first of all, accept yourself just the way you are. सबसे बड़ा जो एक चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, दैट इज सेल्फ लव। अब अपने आप से प्यार करो, अब अपने आप से प्यार करो, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई इंसान आपको सुनेगा। आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो कोई इंसान आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? कोई आपको लीड भी आपके पास क्यों आएगी जब भाई तुमको ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका जो भी एक एस्पेक्ट है, आपका जो एक एक्सेंट आ रहा है, दैट इज यूनिक। अब आपके उसमें MTI आ रहा है, लोग समझने में प्रॉब्लम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो इसका एक सोल्यूशन है, people will behave in the way they are brought up. People, and always remember, only hurt people. I agree. Only hurt people can hurt people. मैं अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ तो मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें गुस्सा ही करूंगी। और अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो मैं ट्राई करूंगी भाई तू भी हंस ले, छोड़ ना यार तू भी हंस। तो अपने आप को इतना इवॉल्व करो कि जो भी कोई सामने वाला तुम्हें कहता है उसका असर तुम पे ना पड़े। I believe and I'm 100% sure कि तुम कोई बोल सुनने में बहुत लग रहा होगा, अरे कैसे बोल रही है ये, ऐसा थोड़ा होता है, तो ऐसा तो होता है, हमें फर्क तो पड़ेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करो। आई नो इन सब चीजों ने तुम्हारा कहीं ना कहीं माइंडसेट बिगाड़ा है, और हमने उन लोगों को उतनी लिवरेज भी दी है किसी को हमारा माइंडसेट खराब करने के लिए। मैंने धीरे धीरे डेवलप कैसे करे, लाइक उस जो मैं उस पे आ रही हूँ मैं। डेवलप आपको कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट थिंग इज गेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है, गेट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अब कैमरा में भी ना एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, हमें हमेशा बोला जाता है कि आप कैमरे में वीडियो बनाओ का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। हम लोग वीडियो बनाते हैं स्क्रीन में देख के, इजंट इट? आई एग्री। देख के वीडियो बनाते हैं, हम अपने आप को देख के वीडियो बनाते हैं, तो उससे आपका कैमरा फियर नहीं जाता, उससे आपका स्क्रीन फियर जाता है। उससे आपका कैमरा फियर नहीं। ये मिस्टेक मैंने करी 1 साल तक लगातार, जब मैंने अपना स्टार्ट किया था 1 साल तक कंटिन्यू नहीं किया था, फिर आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन एल्स कि नहीं, स्क्रीन में आपको दिखना होता है लेंस में इसके। So, उससे आपका स्क्रीन का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। जैसे अगेन आपके पास कैमरा आ जाएगा, अगेन आपका वो जो एक अंडर कॉन्फिडेंट है या जो एक एंजाइटी है वो अगेन आ जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, नेक्स्ट इज आपको कंटिन्यूअस जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है। मैं अभी लाइव थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं वही बात कर रही थी कि कभी भी फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप किसी और
कल्चर में बिलोंग करते होगे, कोई बच्चा एक बंगाली फैमिली में पैदा होता है, पंजाबी में होता है, मद्रासी में होता है, तो बच्चा बचपन से एक लैंग्वेज सुनता है, बड़े होते हैं वही लैंग्वेज बोलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? और उसको तो बोलना भी नहीं आता। इट इज बिकॉज ऑफ द लिसनिंग। आपकी लिसनिंग में बहुत ज्यादा पावर है। इफ यू वांट टू इंप्रूव एनी ऑफ योर लैंग्वेज, स्टार्ट लिसनिंग दैट लैंग्वेज मोर। उसको लिसन करो ज्यादा, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे फ्रेजेस को आप अपने दिमाग में उस लैंग्वेज में एक्सेप्ट करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक बिल्ली जा रही है, तो उसको मैं बिल्ली अपने दिमाग में ना बोलूं, मैं उसको बोलूं कैट जा रही है, कैट इज गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, तो एक पेड़ है, so I will say this is a tree. So I will just try to picturize things in my mind in the language I want to develop. Rest it depends upon confidence. बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद पे. सो देयर इज वन मंत्रा that can improve everything that you want to have in your life, and that is do the thing you fear and fear will disappear. What is underconfidence? Awesome. Underconfidence means nothing, that you are afraid of something, that's it. Exactly. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. Some people are really confident in flying an airplane, isn't it? But some people are so underconfident that they cannot sit in an airplane. ऐसा क्यों? What is the difference? The difference is just the mindset. Mindset. राइट? तो आप कुछ कुछ करो. अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं गोवा में थी तो मुझे हाइट और पानी से बड़ा डर लगता था. आई डिड पैरासेलिंग, वो चला गया. देखा मैंने वीडियो वाला. आई डिड पैरासेलिंग, वो चला गया. उसके बाद नहीं लगता डर, मैं तो मन कर रहा था फिर से चली जाओ ऊपर. तो आपका ना एक वो जो आपका फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंफर्ट जोन, आपको पुश तो मारना पड़ेगा. अपने उसको उस दरवाजे को खोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. चाहे तुम धक्के से खोलो, मुक्के से खोलो, तोड़ दो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सक्सेस उसके बाद है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, वंस यू कॉन्कर any fear you have, today I would like to tell you this thing for everybody who is watching us, कि आज तुम एक लिस्ट बनाओ, तुम्हें किस चीज से डर लगता है. लोगों से बात करने में लगता है, खुद को शीशे में देखने से भी लोगों को डर लगता है. I tell you this. नहीं, I agree. तुमने बाला मूवी देखी होगी. बाला मूवी में तो यही तो दिखा है. हाँ, उसमें यही तो होता है कि वो अपने शीशे में एक टेप लगा के रखता है, कागज, वो अपने आप को देख ही नहीं पाता. Some people have fear of this. Some people have fear of maybe dressing up nicely. Some people have fear of anything. So try to overcome that fear. And आपने बाला में देखा होगा, जब उसके मन से वो डर निकलता है, how much confident he became. जब सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं गोवा से आई थी, तब मेरा it was a rebirth for me because I got really confident. Solo travel किया मैंने, मम्मी पापा से अकेले रही, कॉन्कर किया फियर, इतने सारे लोगों के साथ अकेले रही वहां. Again, I conquered my fear. So conquer your fear, anybody, and always remember this thing, people. You cannot succeed in your life till the time you will be in wrong circle. बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते हैं, I know तुम्हारे अंदर बहुत एस्पायरेशन है, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, you really wish to do a lot of things. Even if by sitting at your home you can do a lot of things, but try to get ahead from your home. हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बच्चा है हिमांशु, बहुत प्यारा बच्चा है. तो he is from उत्तर प्रदेश. So there he was not getting that much opportunity. So he took a stand for himself, and now he is living in Delhi and doing incredible work. Okay, अपना हिमांशु. हाँ, अपना हिमांशु. अरे बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहा है. तो you have to understand this thing. आपको अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत सारे लोगों को, इवन अपने पेरेंट्स को भी डिससैटिस्फाई करना पड़ेगा. आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे आपको, आप कितना भी समझा लो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको ये चीज जाननी पड़ेगी. 5 साल कड़ी मेहनत कर लो. हमारे, अब तुम बोलोगे मैम ऐसे करी, 5 साल कड़ी मेहनत कर लो, फिर तो आजादी 5 साल हो जाएगी, फिर कैसे होगा. लेकिन आई हैव टू टेल यू, जो ये 5 साल तुम्हें कड़ी मेहनत करोगे, आगे उतनी मेहनत शायद ना करनी पड़े, क्योंकि तुम अपना टाइम मल्टीप्लीकेशन सीख जाओगे तब. बिकॉज देयर विल बी पीपल, दोज हु विल बी वर्किंग फॉर यू and with you, and then you will be having leverage of time to not give it your time to miscellaneous activities. Your focus will be only on the things through which you can grow and expand your business. तो तुम्हारा टाइम वहां पे बहुत ज्यादा वो हो जाता है ना, मल्टीप्लाई. तो इन सब चीजों को जब हम सीख जाते हैं, हमारी लाइफ में जब ये सब चीजें आ जाती है, तो हम अपने आप को ग्रो कर जाते हैं. तो जितने जो भी एक्सेंट का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा. प्रैक्टिस करते रहो, राइट मेंटरशिप लेते रहो, सुनो इंग्लिश लैंग्वेज को, पॉडकास्ट आते हैं. एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज बुक रीडिंग करो. बुक रीडिंग बहुत, एंड बुक रीडिंग भी ऐसे नहीं कि तुम कोई रोमांटिक और हॉरर बुक उठा के ले आए. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. रीड सेल्फ हेल्प बुक्स. एक बुक का मैं शायद रिकमेंडेशन भी दे जाऊं, अगर बहुत सारे बच्चों को अपना पर्पस फाइंड आउट नहीं होता,
अपना फोकस नहीं फाइंड कर पाते, देयर इज अ बुक इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द हैप्पी लिविंग. जापानीज लोग इतने ज्यादा सालों तक कैसे रह पाते हैं. You will be able to understand how you can understand your purpose of life. So you can do that. मैंने रीड नहीं किया ये, बट बहुत सुना है इसकी ऑडियो बुक सुने एक दो बार. लिस्ट में मैंने लिखा हुआ है इस साल में कि मुझे कम से कम इतनी बुक्स पढ़नी है, तो उसमें इकिगाई का भी नाम है. ओके, लाइक आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग बेसिकली पूछा है इसकी. अभी आपने बोला कि पेरेंट्स समटाइम्स पेरेंट्स नहीं होंगे, बट व्हाट आई थिंक हियर इज कि यार इमोशंस यूज करो, सिंपल है, ठीक है. मुझे हमेशा ये बिलीव लगता है ना कि सिचुएशन हमेशा मेरे हाथ में होती है. लाइक आई ऑलवेज ऑब्जर्व पीपल की बेसिकली इस सिचुएशन, अगर दोस्तों की अगर ये सिचुएशन मेरे साथ है, बट अगर यही सिचुएशन अगर उस पर्सन के साथ होती, मेरे मेंटर के साथ होती, तो वो कैसे रिएक्ट करते इस टाइम पे, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते. एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड आपकी हेल्प करे, दे डोंट, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी हेल्प करे, कभी भी नहीं. दोस्त भाई बहन कोई भी नहीं. बट वहीं पे अगर आप चाहोगे अपने पेरेंट्स के पास में, मे बी थप्पड़ मारे, लाठी लेके मारे, कुछ भी करे, बट एट द एंड दे विल सपोर्ट यू एंड दे विल प्रोटेक्ट यू. सिंपल. तो पेरेंट्स वो है जो कि आपको कैसी भी लाइफ आ जाए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. सो ऐसा नहीं है, वो चाहते नहीं है आपको लाइक कि बाहर निकलो, आप कुछ बड़ा करो. वो बस डरते हैं कि लड़का गलत ना कर दे. वो डरते हैं कि आप फेल ना हो जाओ. वो डरते हैं कि आप टूट ना जाओ. हर्ट ना इस चीज जाओ, के लिए. हर्ट ना हो जाओ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अगर उनको कॉन्फिडेंस आएगा ना ये वाला कि नहीं यार करने दो उसको, और अगर आपके अंदर जिद होगी ना, डेफिनेटली आप कर लोगे. बिकॉज इसलिए कि मेरी मदर का माइंडसेट भाई साहब बहुत ऑड था, बट राइट नाउ शी इज टोटली ओके. राइट. ओके, लाइक सीरियसली कॉन्वर्सेशन बहुत अमेजिंग जा रहे हैं. फिर तो अभी स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस है. ओके ठीक है पूजा, लेट्स टॉक अबाउट योर स्टार्टअप. ओके लाइक अच्छा ठीक है, पहले मैं बता दूं कि मैं पूजा को मिला कैसे था. एक्चुअली मैं भी वर्कशॉप में गया था गोवा वाले, वहां पे तुम नहीं मिले थे, बट वो सेम वर्कशॉप ना एक बार दिल्ली में भी हुआ था. सो आई डोंट नो कैसे मिला हम लोग. फिर हम गए थे दोबारा वर्कशॉप में, तो पूजा वहां पे आई थी. देन फिर हमने टाइम स्पेंड किया था, अपने बहुत चीजें सीखे थे, अपनी नॉलेज शेयर किया था. फिर उस टाइम से फिर हम सोशल मीडिया फ्रेंड बने. राइट नाउ वी आर डूइंग पॉडकास्ट हियर. ओके सो लाइक लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप. आपका स्टार्टअप किस चीज के ऊपर था एक्चुअली, और वो आपको बस आइडिया आया कैसे? सो मेरा ये सबसे जिंदगी का एक सबसे ऐसा एक पेज है मेरी लाइफ का जो दैट एक्चुअली मेड मी हु आई एम टुडे. सो आई बिलीव ये जो स्टार्टअप का एक कीड़ा था, वो कीड़ा बचपन से ही मुझे इतना लगता था कभी कभी, मतलब एक जील था कि यार पूजा शायद यू आर नॉट मेंट फॉर 9 to 5. कभी कभी लगता था मुझे यू आर नॉट मेंट फॉर 9 to 5, तुम्हें कुछ बड़ा करना है. बिकॉज अब मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजों की बहुत मानती हूँ. सो माई डेट ऑफ बर्थ इज 1009 1999. सो आई एम ओनली born with two numbers, that is 1 and 9, which are leader numbers. So I am a born leader also. So ये एक जो चीज हुई मेरे साथ, तो आई वॉज इन द थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, ग्रेजुएशन चल रही थी और कोविड हुआ था 2020 में जब. तो उससे पहले जितना भी मैं काम कर रही थी वो ऑफलाइन मोड पे था, एंड देन सब कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑनलाइन आया. तो आई स्टार्टेड माई वर्क विद अ स्मॉल यूट्यूब चैनल. 18th May 2020 माई फर्स्ट वीडियो वेंट लाइव. तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार ग्रो कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, स्टार्टअप कुछ तो कर सकते हैं. ये लर्निंग, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ना अपन लोग कुछ बड़ा बड़ा कर सकते हैं. तो मैंने एक वेंचर, मेरे स्टार्टअप का नाम था अनलीश योर पैशन, और मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी यही है, अनलीश विद पूजा. ये जो अनलीश वर्ड है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है. तो उसके बाद आई क्लियरली रिमेम्बर आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप ऑन 1st of August 2020, जो कि सितंबर 30th 2020 को फेल हो गए, खत्म, रैप हो गए, खत्म. तो हुआ क्या था कि हमने जब स्टार्ट किया था, तो विद इन लाइक 15 days of our startup, almost 450 students of Delhi University were working with me as an intern. Wow. I acquired that much of market, and we are selling our courses. Everything was happening bang on. We were growing, everything that was happening. But एक गलती जो हम लोग हमेशा करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करो तो अपने अपने लोगों के साथ करो, दोस्तों के साथ करो. वही गलती कुछ मैंने भी करी थी. तो मैंने ये सोचा था कि जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको सारी पोजीशन दे दो, इसको मार्केटिंग का भी बना दो, इसको ये बना दो, इसको वो बना दो, उसकी गर्लफ्रेंड को कंटेंट का बना दो, उसके बॉयफ्रेंड को इसका बना दो. सारा मैंने पूरा जिला इकट्ठा कर दिया, बिकॉज ट्रस्ट लगा था. जब धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते हो कि यार
कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा हो जा रहा है यहाँ पे। स्टार्टअप को ग्रो होते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, फाइटिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ को फाउंडर Okay. होता लोगों को एक्चुअली द थिंग इज स्टार्टअप लिटरेसी नहीं थी लोगों को, इवन दो आई वांटेड टू गिव देम, दे वर नॉट रेडी टू टेक इट। को फाउंडर वो होता है जो एक एक्सपर्टीज आपके स्टार्टअप के अंदर लेके आ रहा है। एक Exactly. वो इंसान नहीं होता है जो ऑलरेडी उस स्टार्टअप में है और वो भी सीख रहा है और अभी मतलब उसके पास कोई इतनी वेल कोई स्टैब्लिश नॉलेज नहीं है। नहीं है, वो भी ठोको बजाओ सीखो कर रहा है। को फाउंडर को मैं अपनी इक्विटी तभी दूंगी ना यार, मैं किसी को अपनी इक्विटी तभी दूंगी भाई तू कोई नॉलेज लेके आ रहा है मेरे को ग्रो कराएगा, राइट? आई होप आई एम सेइंग दिस राइट Exactly. तो वहां पे जो क्लैशेस शुरू हुए और इंटरनल लूपहोल्स जो कैरी फॉरवर्ड होने लगे, जो मैंने सिस्टम बनाया था वो एक बहुत ज्यादा आई वुड से उसने काफी सिस्टम खराब कर दिया था। लड़ाइयां हुई बहुत ज्यादा उस पोजीशन के लिए, मुझे अभी से को फाउंडर बना दो, इसको को फाउंडर क्यों बनाओगे, ये वो मतलब ऐसी चीजें, जबकि मेरा कोई थॉट भी नहीं था। ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग एंड इवेंचुअली दोस्ती तो गई स्टार्टअप भी गया। Okay. So आप फाउंडर थे, राइट? आई वॉज द फाउंडर। कोई को फाउंडर बना नहीं, बना कोई नहीं बना, स्टार्टअप शट डाउन। तो फिर बेसिकली आपके पास उसके सॉल्यूशन बाद था मैंने ना ये? ग्रो करने का ट्राई किया। ओके ओके। हाँ, उसके बाद मैंने फिर से ग्रो करने का ट्राई किया, लेकिन अगेन वही गलती हुई थी कि आई ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल। अगेन आई ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल, सो दैट इज व्हाट एंड नाउ। अब एक मैं आपको चीज बताती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा मुझे बोलते हैं कि पूजा मे बी यू वर वेरी बेवकूफ टू आइडेंटिफाई पीपल। आई एम, मतलब मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं थी, बिकॉज एक गलती के बाद मैं सीख नहीं पाई। So now I realize this thing that maybe that incident totally happened so that I can identify the real nature of people, how society actually works. So that was a very big lesson for my life because and जब आपका startup fail होता है, said I would tell you, आप तित्थर बित्थर हो जाते हो, इमोशनल बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, बिकॉज आपने अपना एक ड्रीम वहां पे लगाया होता है। एंड जब आपका स्टार्टअप अच्छा भी चल रहा होता है, मैंने विद इन 2 months आई जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। वाओ, ऑसम ऑसम। ऑर्गेनिक था किस चीज पे ये, लाइक एग्जैक्टली क्या था, training थॉट and क्या like था? I used to give courses to people Okay. on communication skills, on interview skills, इन सब चीजों पे था। मुझे आज भी याद है, मैंने अपना फर्स्ट वेबिनार लिया था। I took my first webinar on 10th of August 2020 को। लाइफ का पहला वेबिनार लिया था मैंने अपने 10th of August 2020 को। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। I was shivering because that, and you won't imagine how many people turned up for that webinar organically. 350 people turned up for that webinar, and we closed 80 people on the spot during the webinar. ओके, ठीक है, गॉट इट, दैट्स रियली अमेजिंग। तो आपको ये एप्लीकेशन था या फिर आपके सिर्फ वर्चुअल थे या फिर फिजिकल भी थे, कैसा था? वर्चुअल था, हमारा इंस्टाग्राम पेज था। Okay. तो हमने वहां से लोगों को वी यूज्ड टू इनवाइट, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट। आई गेस आपने मेरे को इंस्टाग्राम वो शो भी किया था, राइट? हाँ, मैंने तो पूछा था एक बार पहले। हाँ ठीक है, याद आ गया मेरे को। जो हमारे डीयू के बच्चे थे, तो हमने एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी। So that marketing strategy was to, because every DU student looks for exploration, and marketing is a kind of an industry which holds a lot of potential. So हमने बच्चों को as a marketing intern hire किया था bulk basis पे, and they used to publicize about the free webinar. From there we used to get the lead. Okay, so traffic जो थे बेसिकली वो DU वाले बच्चे लेकर आ रहे थे। DU वाले बच्चे लेके आते थे। और आप उनको कुछ कन्वर्जन पे देते भी थे, कुछ इंसेंटिव या फिर कुछ कन्वर्जन? हमने एक परसेंटेज सेट किया हुआ था, दैट्स व्हाट वी डू। इनिशियली बच्चे आपको कहाँ पे मिले जो जिन्होंने लाइक उसको अवेयरनेस और क्रिएट करना चालू किया? हाँ, so कहाँ से मिले आपको? उससे पहले जिन लोगों को जो मेरे दोस्त थे, जो लोग मेरे साथ आए थे, जो एज एन हु वाज द मार्केटिंग हेड, जिसको मैंने बना दिया था, ये सब कुछ करा था, तो उन्होंने भी थोड़ा आउटरीच किया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू कराया, मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू कराया। सो इट वाज लाइक ऑर्गेनिक अगेन। इसको बोल दिया पोस्ट अपलोड कर दे कि मैंने इंटर्नशिप निकाली है। आप इंटर्नशिप के बारे में डाल तो आ ही जाते हैं। फिर मेरे कुछ कनेक्शंस थे। आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो आई हैड माय कनेक्शंस विद अ लॉट ऑफ सोसाइटीज बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट सेल ऑफ माय कॉलेज। तो वहां से मेरे पास दूसरे कॉलेजेस के भी रेफरेंस थे। तो आई कॉन्टैक्टेड द प्लेसमेंट सेल ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस कि हम लोग एक इंटर्नशिप ऑफर करना चाहते हैं, दे बिकम रेडी टू पब्लिसाइज अबाउट इट, सो दैट बिकॉज हर कोई प्लेसमेंट सेल चाहता है उसके साथ साथ बच्चा स्किल अप हो जाए।
तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी वी अडॉप्टेड, जहाँ के जिसके थ्रू हमें बच्चे मिले थे। ओके 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 ओके, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो कि अगर आप अभी फ्यूचर में अपना सेकंड स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आप नहीं करने वाले, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो? वो मिस्टेक कौन कौन से होंगे? पहला तो दोस्ती को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना। दोस्ती ठीक का है, मतलब okay. बिल्कुल एकदम कतई दोस्ती, हम अपने एक इसका दोस्ती का मतलब गाइस ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ स्टार्टअप स्टार्ट हाँ, नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूजा के साथ जो डिपेंड्स फ्रॉम हुआ। पर्सन टू पर्सन, हाँ एग्जैक्टली, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है जहाँ पे दोस्त एक साथ शुरू करते हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल टुडे। आई एग्री। या सो अब जैसे अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं आई वाज 20 देन व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप। आप उसको इमेच्योरिटी भी कह सकते हो, इमेच्योरिटी भी कह सकते हो। मेरे ख्याल से ना एट दैट टाइम यू वर थिंकिंग इमोशनली नॉट लॉजिकली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। कि इसको बुरा लग जाएगा। अरे यार ये तो छठी क्लास से साथ में रहे, ये तो बुरा मान हाँ जाएगा। ये तो यार अभी यार मेरे को आई कैन नॉट हर्ट हर यार। डोंट इमेजिन सिड, मेरी कहीं पे भी कोई स्टार्टअप मेरा फेल हुआ, सब कुछ मेरे साथ हुआ, मतलब मेरा ड्रीम टूटा। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी थी, जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए थे। 4 दिन बाद उस लड़की का बर्थडे था, मैं उसके लिए इतना सब कुछ लेके गई, तुम मान जा यार हमारी दोस्ती तो ठीक रहे। ओके, एंड फिर हुआ क्या? वो भी नहीं रही। वो भी नहीं रही। Everything is happening for a reason. People are so clever today. I don't talk about all these things and I really admire those people, those who have left me. But आपको कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए. Now those people copy me. उन्होंने सब कुछ सीखा, कॉपी किया, और उनके दोस्त कुछ मेरे साथ है, तो उनके दोस्त मेरे को मैसेज कर देते हैं कि पूजा इस कोर्स का प्राइस क्या है, जस्ट टू लेट हर नो कि मेरे प्राइसेस क्या चल रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, सो प्लीज बी अवेयर सो दैट. अब देखो ये सब चीजें मुझे कैसे पता चल रहा है, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, once you are there you have to keep your eyes open because people will try to eat your business up. Nobody wants you to grow, nobody, not damn person wants you to grow. तो आपको इन सब चीजों में आंखें अपनी खुली रखनी चाहिए कि आपका राइवल कौन है, हु कैन ईट योर बिजनेस. बिजनेस इज बिजनेस. जो तुमने ये वाली बात बोली ना, मैं इमोशनली सोच रही थी. यस, आई वाज थिंकिंग इमोशनली. एंड आई बिलीव फ्रेंडशिप में भी ना डिफरेंस होता है. द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप मी एंड सिड हैज, इट्स वेरी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप. It is extremely professional. We met on a professional basis. That is different. अब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा कैजुअल हो यार, आप उसके ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकते हो. Exactly. अब अगर खराब हुए तो हाँ भाई, बस ये दिन देखने बाकी रह गए थे. Exactly. I can understand, I can feel. ओके. तो पहले तो आपका ये हो गया कि आपको लाइक आप लॉजिकली सोचोगे, इमोशनली नहीं सोचूंगी. Second would be that I would focus more on the solution and less on the problem. आजकल के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब व्हाई डोंट अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स ग्रो और सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ही, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है भाई? प्रॉब्लम तो है, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा, लेकिन तुम उस सोल्यूशन में क्या मॉडिफिकेशन लेके तुम मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो तुम्हें ढूंढना है. दैट इज व्हाट आई फील. सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होना चाहिए. One more thing that I will keep in mind when I will have my startup in the near future is taking care of people. Taking care of people, because business means people. Business is nothing but people. You earn money because of people. The people that you work, the thing जो आपके साथ काम करते हैं वो भी people ही है. Having great people skills, having great foundational people, and I will try to I will not hesitate in taking help. जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, आई वाज हेजिटेटिंग अ लॉट इन टेकिंग हेल्प. यार मतलब वो क्या समझेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता है ना, तो ये वाली चीज नहीं करूंगी. उससे क्या हो जाएगा, इक्विटी तो जाएगी ना स्टार्टअप की. कोई बात नहीं, आ जा तू, लेकिन वी विल ट्राई टू ग्रो समथिंग टुगेदर, जो मैं इंडिविजुअली भी इतना नहीं कमा पाती. आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? मेरा माय इन्वेस्टमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख. और लोगों ने नहीं मिलाया उसमें पैसा कुछ, बस आपका था? मेरा था. गुड फ्रेंड. ठीक है. आपको क्या लग रहा है कि जो आपका स्टार्टअप था स्टार्टिंग में, वो एक अच्छा था, ठीक है, वो सॉल्यूशन बेसिकली लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, स्किल्स प्रोवाइड कर रहा था. आपने सेकंड टाइम दोबारा ट्राई किया, चलो ठीक है, इवेंचुअली वो भी नहीं हो पाया. सो आपने थर्ड टाइम सेम चीज क्यों ट्राई किया? थर्ड टाइम इसलिए नहीं ट्राई. अच्छा हाँ, उसके बाद एक और चीज बताती हूँ मैं तुम्हें. किसी भी इतना भी ट्रस्ट मत करो कि तुम्हारे सारे हाथ काट दे.
अब जो मेरा सोशल मीडिया था तो उसका एक्सेस उन लोगों के पास था कहीं ना कहीं. ओके. आई हैड अप्रोक्सीमेटली 35-4,000 फॉलोअर्स देन. सीरियसली? हाँ, ये थर्टी. जो अकाउंट मेरा है अनलीश विद पूजा, ये मेरा नया अकाउंट है. और वो वाला कहाँ गया फिर? वो हैक हो गया. हैक हो गया लेके कोई? भाई मान लो बस तुम. ठीक है. Then, ओ भाई. you know what? That particular phase of my life was very traumatizing. I used to cry यार. मतलब क्या हो क्या गया. मतलब आप एक बात बताओ, in growing in this digital world, your digital presence is very important. Overnight, my digital presence was gone. That trust was gone. That faith was gone. Everything was gone. And then it was very difficult. अब कैसे कैसे फिर ओवरकम कर पाए बेसिकली? अगर आप बहुत डार्क फेज में थे फिर आप कैसे उसको ओवरकम कर पाए अपने उसके लाइफ? बाद as I told, I was in the third year of my college. To let go of all these things and to learn something new, I took a job in Zomato. Campus ओके. placement लिया मैंने. ठीक है. जोमेटो में एज अ As डिलीवरी a गर्ल? हाँ. जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. हाँ प्लीज. So I was working with Zomato in the team customer delight, wherein वहाँ पे उनका एक chat process रहता है जिसके थ्रू आप बेसिकली कस्टमर केयर मान लो यार तुम. ठीक है. वो था. तो बेसिकली वहां पे भी मेरा यही था कि कम्युनिकेट जहाँ पे ज्यादा कर पाऊँ तो वहीं जाऊंगी मैं. तो वहां पे आई डिड माई जॉब फॉर. उसके बीच में जोमेटो में जॉब करते करते मेरे पास राहुल सर का मैसेज आया एक दिन. पूजा, डू यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई टीम एंड कम टू गोवा. 26 दिसंबर 2020 की बात है और 2 दिसंबर 2020 को मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था. राहुल सर का ऐसा मैसेज आया. मैंने राहुल सर के साथ 3-4 इंटरव्यू किए. उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया. उन्होंने मुझे बोला गोवा आ जाओ. मैंने सर को बोला पैंडेमिक है, मैं नहीं आ रही. राहुल सर मेरे से बहुत टाइम तक नाराज थे. ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी. उसके बाद आया इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप जो राहुल जहाँ पे आप थर्ड आए थे. जहाँ पे मैं थर्ड आई थी. मैं बस सेकंड राउंड तक गया था. उसके बाद मुझे भी अब बाहर कर दिया गया. चलो बेटा आप बाहर जाओ. अच्छा, मुझे नहीं पता था यार ये. आई रियली डिडंट नो अबाउट इट. तो वहां पे भी तब जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो राहुल सर ना मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे. उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो भी बनाई थी. मैं दिखाऊंगी तुम्हें. उनकी यूट्यूब पे वीडियो है. उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ इनडायरेक्टली वहां पे कि क्योंकि मैंने राहुल भटनागर सर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो. हाँ, सो यू कैन. ही इज आवर मेंटोर. जिनकी वर्कशॉप में हम लोग हुआ गए थे. तो फिर उसके बाद आई केम सेकंड रनर अप. तो फिर ठीक ठाक हुआ. उसके बाद फिर जब मैंने रेसिडेंशियल वर्कशॉप के लिए एनरोल किया, फिर मैं जब वहां पे गई तो जाके उनकी नाराजगी खत्म हुई कि हाँ ये लड़की एक्शन टेकर है. तो फिर मैंने जोमेटो की जॉब अपनी 2 महीने में छोड़ दी थी क्योंकि मेरे को लग गया था मेरे बस का नहीं है. फिर मैं गोवा से वापस आई. देन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन आई स्टार्टेड लॉन्चिंग माय कोर्सेज. उसके बाद विद इन 3 months आई टच द रेवेन्यू ऑफ 4.5 lakhs organically without any ads. So उसमें भी I was running 13 days challenge, 13 days communication challenge और मेरा community program था. तो वहां से we generated that revenue and accordingly then I because of Sid I also got one of the contracts with the leading affiliate marketing company. As we are not paid any money, so we will not sponsor them. so I got a contract. तो वहां पे मैंने अपना communication course दिया था. वहां से भी I generated a very great revenue. And उसके बाद मैंने अपने ऑफलाइन वर्कशॉप भी कंडक्ट करी थी दिल्ली में. तब बहुत सारे बच्चे आए थे. इवन देयर वर स्टूडेंट्स दोज हु केम जस्ट फॉर 1 day ऑफ माय क्लास फ्रॉम पटना. वन स्टूडेंट वाज फ्रॉम पंजाब. वन स्टूडेंट वाज फ्रॉम मनाली ऑल्सो. तो ये सारे बच्चे आए थे दिल्ली में. हमारी वर्कशॉप हुई थी 4 सितंबर को. उसके बाद ये वाली चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो मैंने कहीं पे भी इसको डाला नहीं है. एंड आई वुड लाइक टू टेल दैट आई वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 3 months with Maharshi Markandeshwar University, which is there in Ambala. Okay. So I was living there. मैं अम्बाला में 3 महीने तक रही हूँ, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है. तो why I took that particular job was so that I can get experience and I can basically मुझे एक सर्वे कंडक्ट करना था. I was trying to identify the culture and mindset of the students, those who go to colleges. वहां पे जाके मुझे ये चीज पता चली कि यार हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा लैक है. कंपनीज तो आती है कॉलेजेस में लेकिन प्लेसमेंट 0 होती है. बहुत सारी चीजें. एक और चीज लाइक मुझे ना मैंने सुना था जब मैं रिसर्च करता कॉलेजेस के बारे में, तब समटाइम्स होता है ना कि कुछ कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, वो क्या करते हैं कि लाइक बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे कंपनी आती है
और उन कॉलेजेस का कंपनी के साथ होता है टाई अप, ठीक है। और वो बोलते भी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको लेने लेना पड़ेगा, ये जो 10-15-20 लोग हैं, फिर ये पूरी क्लास जानी जानी चाहिए बेसिकली आपके कंपनी में, और फिर विद इन 2 और 3 मंथ उनको वो निकाल देते हैं। कॉलेज की तरफ से क्या हो गया कि भाई हमने तो जॉब प्रोवाइड कर दी थी, जस्ट बिकॉज कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, दैट्स आपको बूम शट डाउन कर दिया। वही मैं कह रही थी ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली बात कही थी कि कंपनी लेके आएंगी लेकिन उस चीज की गारंटी नहीं है कि भाई बच्चा प्लेस हो जाएगा। बैठना तो बच्चे को है ना, बोलना तो बच्चे को है, बोलना ही नहीं आता है उन लोगों को। अब सिंपल एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ यार सिर्फ आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन एचआर पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बच्चा बोलता है माय नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस, माय फादर डज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, आई लिव हियर, मेरे को ये अच्छा लगता है, माय हॉबीज आर दिस। इज दैट अ राइट वे टू आंसर इन एचआर? एब्सोल्युटली नॉट. Why an HR asks this question? He simply asks this question to understand whether you are a perfect fit for that job or not. Simple. जो तुम्हारे पास स्किल है वो इस बंदे जो चाहिए उसके पास उसके लिए है या नहीं. अब होता क्या, बच्चों के पास इस चीज की लिटरेसी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कैसे करना आंसर. बच्चे फोकस्ड ही नहीं है, they don't know how to handle situations and it is because of that they don't get what they want. एक और चीज बताना चाहूंगी, a teacher is never wrong. Okay. टीचर इज नेवर रॉन्ग. वाई? एक वही टीचर होती है जो पढ़ाता है और वो बच्चा एक बच्चा 100 नंबर लेके आता है. एक वही टीचर होती है जो पढ़ाता है, वही बच्चा 50 नंबर लाता है, और एक वही टीचर होती है जो पढ़ाता है जो बच्चा फेल होता है. द प्रॉब्लम इज विद हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू अपग्रेड योर लाइफ, हाउ मच यू वांट टू अपलिफ्ट योर लाइफ. सो द बेसिक एजेंडा इज दैट टीचर का फोकस तो वही है ना, बच्चे को अपग्रेड करना. तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस इन्फॉर्मेशन को कितना इंप्लीमेंट करते हो, कितना कंसिस्टेंसी से. तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. वाओ. ओके, लाइक पूजा, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करो कि इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में. ठीक है कि समटाइम्स लोग हो, हर मैं आई कैन गारंटी यू कि हर एक पर्सन के लाइफ में ना ये फेज आता ही आता है. ठीक है, इवन कुछ टाइम पहले मेरे लाइफ में भी आया था, बट मैंने कर लिया उसको ओवरकम. बट हाँ, एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप बात करो कि क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम. और आई बिलीव कि आपके लाइफ में भी आया होगा, हमने बात भी किया था एक बार उस पर, बट फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे उसको ओवरकम किया? For everybody, those who are listening, imposter syndrome का मतलब होता है not make, मतलब अपने अंदर अपने एक सेल्फ assumption बनाना है कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है. I am not capable enough. हाँ, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कंटेंट नहीं बना पाऊंगा, मैं कोच नहीं बन सकता, मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं सीख नहीं सकता, मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. मतलब मैं तो गिव अप कर चुकी थी जब सब कुछ चला गया था ना, ये सोशल मीडिया ये वो, जब सब चला गया था तब मैं तो एक बार गिव अप कर चुकी थी कि पूजा नॉट पॉसिबल, अब तो ग्रो हो ही नहीं सकता. स्टिल पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारा जो कंटेंट होता है, चाहे वो सिड का, मेरा कभी वायरल, सिड का तब भी वायरल हुआ है, मेरा आज तक कभी वायरल नहीं हुआ है. आई एम नॉट ओवर हियर टू टेल यू कि आपको व्यूज पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आप जब बहुत कंसिस्टेंटली काम करते हो ये सब चीजें मैटर करती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके. वो नहीं होता, स्टिल हमारे मन में एक टाइम पे आता है जाने दे यार, हम सक्सेस ही नहीं मिल रही, जाने दे, मेरे बस का तो है ही नहीं. बट स्टिल हाँ, क्योंकि हमने अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर रखा है, हम अगले दिन फिर वापस वहीं पे खड़े होते हैं. तो ये फेज हर एक इंसान की लाइफ में होता है कि मैं किसी चीज के लिए लायक नहीं हूँ, मेरे ये बस का नहीं है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर लेम्बोर्गिनी, अगर मैं एक बात करती हूँ कि मुझे लेम्बोर्गिनी लेनी है, और चलो मैं अपने पड़ोस वाले अंकल से पूछने जाना, अंकल मैं क्या लेम्बोर्गिनी ले सकती हूँ? सीधा मुंह पे बोलेंगे, बेटा 8 करोड़ की गाड़ी है, कितने लेवेगी तू, कैसे लोगे? सिंपली ये चीज बोलेंगे. लेकिन देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दोज हु हैव अ लेम्बोर्गिनी. मैं किसी और के पास जाऊंगी, मुझे बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल. हाउ इट इज इम्पॉसिबल? बहुत सारे लोगों के पास तो है. इफ इट इज डन बाय समबडी इट मींस इट इज पॉसिबल. वी आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल दोज हु डोंट हैव अ ड्रीम अबाउट दैट थिंग. आप लोग उन लोगों से वैलिडेशन लेने जाते हो कि यार मैं कंटेंट बना पाऊंगी, तो तुम, वो बोलता है कि क्या करना है कंटेंट बना के, क्या ये उखाड़ लोगे तुम कंटेंट बना के, वही तुमको वीडियो बनानी है. लोग टिकटॉक के बारे में कितना लोगों को बुरा बोल देते हैं कि टिकटॉकर है. आज तुमको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए तुम्हें रील बनानी पड़ती है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात हो रही है. बहुत मजाक उड़ाता था टिकटॉकर्स का. ठीक है कि यार क्या ये सारी चीजें, बट आज के टाइम में मुझे रील बनाना पड़ता है. हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा उस चीज के लिए, बट स्टिल हमारा जो कंटेंट है वो टुडे डिलीवर है. और जिस कंटेंट वायरल के बारे में पूजा बात कर रही है वो रील है, वो यूट्यूब वीडियो नहीं है. तो चलिए लोग फाइंड कर रहे हो कौन सा कंटेंट वायरल हुआ था यूट्यूब पर. ठीक है, तो वो रील है. ओके, आपका कहने का मतलब है कि अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो तो आपको राइट पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए हु हैज डन समथिंग
over that industry, somebody who has already done the thing that you want to do. So that is how. And you should always remember one thing, people. Never take us advice from people who has not done anything in his or her life. अगर मैं किसी एक इंसान के पास जाती हूँ ना Lamborghini की बात करने के लिए, तो मुझे बोलेंगे Lamborghini क्यों खरीदनी है बेटा, वैगनआर खरीद ले, वो भी 4 पहियों पे चलती है, वो भी 4 पहियों पे चलती है. तो वो तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट कर देंगे. जिस इंसान ने अपने लाइफ में वो चीज करी नहीं, वो तुम्हें गाइड कैसे कर सकते हैं. हम यूपीएससी करना चाहते हैं या हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए हम जॉब वाले पर्सन से एडवाइस मांगते हैं. हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हम जाते हैं एक जॉब वाले पर्सन के पास, यार मैं ना एक बिजनेस करने का सोचो, करना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं होता बिजनेस करने से, लॉस होता है. और ये गलती हर कोई करता है. ये अब एग्जांपल के थ्रू ना मैं समझ में आ गया कि मैंने भी गलती कर रखा है लाइफ में. हर कोई करता है. लेकिन मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज क्या है कि मेरे पापा बिजनेसमैन है. तो जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक गाइडेंस थी. इवन टुडे ही गिव्स मी गाइडेंस कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए. तो एक सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव अ पर्सन हु हैज डन समथिंग इन हिज और हर लाइफ एंड दैट कैन गाइड यू. कैसा बिजनेस अंकल जी? हाँ जी, पापा का बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स का. he is into extensive sales, sale and purchase of second hand vehicles. We also have our own workshop for car maintenance. So we have our own venture by the name Gulati Motors. Wow. Okay, so which book you are reading right now? कौन सी बुक रीड कर रहे हो अभी आप? I am reading The Universe Has Your Back these days. Written by? यार उसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है. ओके ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, नाम मतलब उनका ठीक है. तो इंग्लिश मुझे नहीं आती. ओके, तो लाइक एनी 3 बुक रिकमेंडेशन? ओके, फर्स्ट वन वुड बी महाभारता. ओके, मतलब कि भगवद गीता, राइट? भगवद गीता, राइट. ओके ठीक है. ओके, read Bhagavad Gita. It has brought really good clarity in my life. Next is No Excuses by Brian Tracy. 100% recommended. It is an amazing book. It can increase your sales, it can increase your self discipline, it can increase your personal life, everything, like anything. मतलब मजेदार बुक है यार. उसको पढ़ के उसी बुक की वजह से मैं सेकंड रनर अप आई थी इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप में. अरे वाह. एक मेरी छोटी सी हैबिट है, जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ ना तो उस बुक जब तो खत्म हो जाती है बुक वो, तो उसके बुक के फर्स्ट पेज पे मैं एक पेज चिपकाती हूँ एंड आई जस्ट राइट इट डाउन व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस बुक, व्हाट आर माय लर्निंग्स. होता क्या है, बच्चे भूल जाते हैं कि अरे यार बुक पढ़ी चलो भूल गए. तो एक चीज को हमेशा सब उस पर लिखती हूँ. तो जब इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप का फाइनल राउंड तो सर ने बोला था किसी भी एक टॉपिक पे करो, तो आई वाज ब्लैंक. एंड उन दिनों आई वाज वर्किंग विद जोमैटो की नाइट शिफ्ट करती थी मैं. अगले दिन सुबह 4 बजे उठती थी. और जिस दिन और माय दैट टीम वाज सो अमेजिंग. अगर किसी को भी अपना कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करनी हो कभी भी, डू गो फॉर जोमैटो. द पीपल आर इनक्रेडिबल, कल्चर इज इनक्रेडिबल. मैं जॉब के फेवर में नहीं थी, वो मेरा एक पर्सनल डिसीजन था. बट इफ समबडी इज रियली इंक्लाइंड टू अ जॉब, गो फॉर जोमैटो. द कल्चर इज अमेजिंग. तो वहां पे वो मुझे इतना सपोर्ट करती थी टीम. जैसे मैं नाइट शिफ्ट पे थी ना, जिस दिन मेरा फाइनल राउंड था, मेरी छुट्टी सैंक्शन नहीं हो रही थी अपर अथॉरिटी से. जो मेरा टीएल था उसने व्हाट ही डिड वाज ही स्वैप्ड हिज लीव विद माइन. ही वर्कड. लोग अच्छे थे. एंड टिल डेट दे अपग्रेड. मतलब वो हमेशा मुझे मैसेज करते रहते हैं. वो ये पूछते कि पूजा यार हमें निकलना है इस जॉब से, आप कैसे निकले? हमें भी कुछ बताओ, जल्दी बताओ. तो मतलब उस दिन मैं नाइट शिफ्ट करती थी, सुबह उठ के वीडियो कंटेंट बनाती थी. अगर आप सिट कभी जाओगे ना मेरे सोशल इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल नीचे रील पे जाओगे, आप देखोगे मैं ना बैठ के रील बना रही हूँ. येलो लाइट पड़ रही है मेरे फेस पे, मैंने स्वेटर्स वगैरह पहने हैं, आई एम क्रिएटिंग रील. ओके. मैं जॉब के साथ साथ रील बनाती थी, अपलोड करती थी कंसिस्टेंटली. डेडिकेशन वो सब मैं करती थी. एंड थर्ड बुक वुड बी, थर्ड नहीं 4 बुक बताऊंगी यार. ओके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. थर्ड बुक वुड बी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा. गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है. उसमें वैल्यूज, उसमें ना टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इट इज अ गुड बुक. यू विल लर्न a very good thing. And last book would be Everyday Hero Manifesto by Robin Sharma. Everyday Hero Manifesto by Robin Sharma. Amazing book. ठीक है. अभी तो मैंने भी amazing book, like hands down it is the best. एक और बुक बताती हूँ, 10x Rule. मेरे को उसके ग्रैंड कार्डोन. हाँ, ग्रैंड कार्डोन, वो भी बहुत अच्छी है. And recently I read this book Do Epic Shit by अंकुर वारिक.
अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी मेरे को बुक, वो काफी अच्छी लगी। सिड अपनी बुक निकाल रहा है, डू अ पिक शिट ना। मैं रीड नहीं करी अभी, मैं डिजिटल क्रिएटर रीड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अभी मैं पढ़ रहा था थिंक लाइक अ मॉन्क, उसके बाद अभी मैं अच्छी है वो भी। डिजिटल, हाँ बहुत लाइक मेरा टोटली पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उस बुक ने सीरियसली। रॉबिन शर्मा ना, और नहीं, थिंक लाइक अ मॉन्क, जो गौर गोपाल दास की जी है। सेट्टी, हाँ जी सेट्टी, जी सेट्टी, नहीं नहीं जी ओके, सेट्टी का है वो तो उसने तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव अच्छा चेंज थिंक कर लाइक, दिया। ओके सॉरी, थिंक लाइक अ आई मॉन्क। ओके ओके। अब बहुत सारे रीड कर रहे हो ना बड़े लोग हो, तो माइंड किस लिए बुझाता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े लोग में कुछ भी नहीं है। अच्छा, और अभी योर टू डिजिटल, रिकमेंडेशंस ऑफ बुक। मेरी दो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन अगर मुझसे पूछो तो डिपेंड करता है कि अभी आपको किस चीज की नीड है यार। अभी किसी पर्सन को किस लेवल पे वो मैटर करता है ये, बट अगर आप इनिशियली कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तो पहले रिकमेंड करूंगा थिंक लाइक अ मॉन्क, बहुत है, आप लाइफ में किसी भी लेवल पे हो वो एक बेस्ट बुक है। सेकंड में अगर आपको रिकमेंड करूं तो बेसिक के लिए आरडीपीडी, रिच डैड पुअर डैड, बहुत बेसिक है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपने पढ़ी होगी, आपके माइंड से सब कुछ निकल गया होगा, अगर आप दोबारा रीड करोगे ना आपको बहुत सारी नई नॉलेज मिलेगी, वो बहुत बेस्ट बुक अच्छा, है। हाँ आरडीपीडी मैंने मतलब एक बार पढ़ के बंद कर दी थी भाई, मेरे पल्ले ना पड़ रहा, मैं बंद कर मैंने दी। फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैंने स्टार्ट की थी जर्नी अपनी उस बुक से, और अभी रिसेंटली मैंने उसको दोबारा रीड किया, मुझे लगा कि ये तो गोल्ड पढ़ा है यार, ये तो कितना अमेजिंग किताब है, एसेट लाइबिलिटीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस चीज में, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया फाइनेंस की तरफ, तो वो तो काफी अमेजिंग बुक है, बट मेरे रिकमेंडेशन बहुत सारे डिपेंड करता है पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग। इसको हम एंड करते हैं पूजा, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ फ्यूचर प्लान लाइक, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसका एक अनकॉमन सा आंसर ये है। I कॉमन, don't know. I don't know. नो आई नो, आई Okay, नो, wow. आई रियली वांट टू हैव अ चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स बाय माय नेम। अरे ये देखो, ये भी निकल रहा अरे है, ये भी हाँ वाह। बोल रहा है, हाँ हाँ ऐसा होगा। सो आई, ये भी कांप गया। ये भी कांप गया। सो आई वांट टू हैव अ चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स बाय माय नेम इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंचाइजी। मतलब I want to have my institutes, ओके। yes, in different, in every city of India, wherein I can help students upgrading their personality, upgrading their communication skills, their interview skills, and how they can do amazing in their life. And one more thing, nowadays people actually don't know how to dress up. They don't ओके। have the right knowledge towards styling also. अब स्टाइलिंग में लोग ये समझ लेते हैं भाई मुझे तो गुची के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, मुझे ब्रांडेड कपड़े खरीदने पड़ेंगे, दैट इज नॉट हाउ इट गोज। इट नोज हाउ यू नीड टू ड्रेस सो दैट यू कैन लुक शार्प, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। अब होता क्या है, बहुत लोगों को अपनी बॉडी शेप के बारे में ही नहीं पता होता है, तो अब होता क्या है, बच्चे लाल चटक रंग की शर्ट पहन जाते हैं इंटरव्यू पे, विद ब्लैक पैंट। वो भी एकदम ऊपर चढ़ी हुई। चढ़ी हुई। So these are basic things, and people should have a very good knowledge and hands-on knowledge about all these things. So I really wish and I have this dream कि हमारा first institute 2023 मार्च में open हो जाएगा। I know बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि in this digitalized world when you can inspire people online, why do you want to have your institutes? But I would like to say one thing: once high touch is greater than high tech. High touch is greater than high tech. Nowadays, through online mode, the knowledge is high tech. It is not high touch. I cannot sensitize students. I cannot feel what they are feeling. I cannot identify their entire body. I cannot decode their body language. ना मैं किसी, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो I cannot decode इसके नीचे बॉडी लैंग्वेज में क्या हो रहा है बच्चे के साथ, बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो वो जब तक आप एक फिजिकल मोड में नहीं आते हो बच्चों के साथ, वो नई चीजें समझ आती है। ये एक सॉफ्ट स्किल ऐसा पार्ट है जो आप ऑनलाइन एक लिमिट तक ही समझा सकते हो। ठीक है। बच्चे को एक क्लासरूम फील चाहिए उसके लिए, एक इंस्टीट्यूट फील चाहिए उसके लिए। एंड उसके साथ भी आई हैव अ वेरी बिग प्लान की एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का। आई हैव अ वेरी बिग प्लान। आई हैव दिस इज माई स्टार्टअप आइडिया बेसिकली, to create a chain of institutes that can rock, मतलब जितने भी आज तक के हैं institutes, to surpass all of them and to create a kind of an institute that provides one stop solution for your entire upgradation of skill set. So this is and I have already developed a program with colleges which has been approved by different government ministries. So एक वो भी program चल रहा है अभी हमारा. So 5 years down the line I see myself learning every day, not stopping learning, becoming really spiritual, becoming a good meditator, and having an NGO
wherein I can help females to come out of bad marriages, because I feel like एक उस चीज से निकलने के लिए भी you need guts. I have seen my बुआ who was in a bad marriage. उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, she was not able to take stand for herself, and eventually उनका किडनी फेल हो गई थी and she lost her life. Okay. It is my real bua's scenario. So sorry. हाँ, so I have seen a lot of females not मतलब वो रेज नहीं कर पाती आवाज यार, वो नहीं हो पाता है उनका हाँ. provide free knowledge. And I have worked extensively for menstruation for a good 2 years, and menstruation is a very big problem today as well. Women's sanitation is a very big problem. Women don't know early signs of a disease, so to provide quality health services to women rural areas mein, so that they can get to know the early signs, to tell people about how they can create employment. And this is a goal that I have in terms of NGO. And एक ये छोटा सा dream है that I want to have a good house in somewhere near around beach. Understood है. Understood. Beach में चाहिए. गोवा में है ना? एकदम. सब पता है. And definitely I really wish that I can give a very good happy life to my parents and to make them very very happy. जो भी उन्होंने sacrifices करे हैं जिंदगी में मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, और अभी भी करते हैं वो. पापा अभी भी अपनी चीजों को मतलब कंसोलिडेट करके रखते हैं कि नहीं मेरे को अभी नहीं लेना है. वो आज भी मतलब उनका ऐसा सीन रहता है, वो एक जीन्स को मतलब वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते. वो ही इज लाइक मैं मेरे पास तो है, मैं ठीक हूँ, बट स्टिल ही मेक श्योर दैट आई गेट एवरीथिंग. तो आई बिलीव, एंड इवन आई एम अ काइंड ऑफ अ डॉटर. मैं अपने पापा को मेरी चीजें नहीं बताती हूँ कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो समझ जाते हैं. तो ये एक ऐसी चीज है जो आई वांट टू गिव एवरी बिट ऑफ हैप्पीनेस टू माय पेरेंट्स. एंड ऐसा लग रहा है कि आपने सॉरी and to have a public library. अरे वाह. I have this dream. मतलब मेरे घर में मेरी एक मिनी लाइब्रेरी है. जब 7 days करवाती हूँ बच्चों को तो मैं अपनी पूरी लाइब्रेरी दिखाती हूँ उनको, एक एक बुक निकाल के तुमको ये पढ़ना चाहिए. वो बच्चे बोलते हैं मैम इतनी बुक्स कहाँ से आती है आपके पास. आजकल होता क्या है, हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, तो वहां पे सिर्फ एक लाइब्रेरियन होती है जो आपको बुक देती है. उस लाइब्रेरी का कंसेप्ट मैं चेंज करना चाहती हूँ. एक फ्री लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ जहाँ पे बच्चे को काउंसलिंग भी मिले, बच्चे को एजुकेशन भी मिले, और बच्चों को गाइडेंस मिले कि उनको अपनी जिंदगी को कैसे एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए. एंड यस, आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम. अब पता नहीं ये होता है कि नहीं होता है, ऑफ स्काई डाइविंग. ओके. तो ज्यादा बड़ा नहीं तो हो सकता है. नहीं, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा है. ओके. एक्चुअली मैंने 5 ईयर का पूछा था, ऐसा लग रहा है आपने पूरे 10 साल का बता दिया है. नहीं यार, पब्लिक लाइब्रेरी मेरा काफी जल्दी ही है, देखो कब होता है. एक्चुअली मैंने पॉडकास्ट देखा था कुणाल शाह का. किसी ने उससे पूछा था कि लाइक कोई बुक रिकमेंडेशन, 10 बुक रिकमेंडेशन, 5 वेब सीरीज का कुछ पूछा था. उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग. दिस इज नो रिकमेंडेशन फॉर माय साइड. बस रीड कर रहा हो, स्टार्ट करो पहले से यार. पहले कोई भी बुक उठाओ, रीड करो पहले, उसके बाद फाइंड करो कि कौन सी रीड करनी है. राइट. वेल पूजा, लाइक इट वाज अ रियली ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए. आई होप कि नॉट होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी. ठीक है, इस मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मैं थोड़ा सा सिड के बारे में बताना चाहूंगी फॉर द लिसनर्स, दोज हु आर लिसनिंग. ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन. आई हैव नेवर मेट एनी पर्सन यंगर देन मी जो इतनी सही एडवाइस देता है. I usually run to him whenever I look forward to any of helps in terms of business parameters. ये लड़का मुझे हमेशा अपना zoom देता है मुझे क्योंकि ये लड़का मुझे हमेशा अपना zoom देता है. So I believe this is what we were talking about, having like-minded people. This is what we were talking about, that you must have somebody in your life who is doing better than you. He is doing far better than me in a lot of aspects. Even though I believe मतलब experience में you can be big, but results actually speak. My results don't speak, but his results speak. So that is a beautiful thing that I really like about him, is he's really down to earth. When I met him, and he has also developed. गिरे ही जा रहा है. When I met him in March 2021, he was, इसकी body language, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा stiff था जब मैं मिली थी. It was not that confident, but he has groomed himself in less than 1 year as
as an amazing person. There was from the first podcast निकाला था विशाल का. Vishal is also a very good friend of mine. We met through social media because of Sid. तो I just texted him straight away कि यार भाई तूने क्या किया अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ. He was looking so sharp. And like, if you really wish to upgrade your life in some way or the other, he has great strategies. And always remember, he can really help you in minting a lot of money. And for anybody who says money is not important, money is really important. Money gives you respect in society. Money helps you in getting luxury. It completes your needs. It give. अब बहुत सारे बच्चे मुझे चीज बोलते हैं कि मैम money cannot buy happiness. But I say this thing: money makes you buy reasons for happiness. So this is also very important. तो आपको ऐसे लोगों के साथ डेफिनेटली अपने आप को वो करना चाहिए. जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स है, why you should rely on your, it's not bad to rely on your parents, but if you are capable enough, if you have this phone, एक फोन से अगर तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो तो क्यों नहीं. You can definitely reach out to him. He is an amazing person. And thank you so much Sid for inviting me. I hope मैंने जितना भी बताया थोड़ा ठीक लगा आपको. या मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगा. और हाँ, मैं आपको 1000 रुपए पेटीएम कर दूंगा ये सब बोलने की. अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, इनका ना कुछ ये पे वे किया हुआ है इन लोगों अभी ने. मैं 1000 करूंगा, फिर पूजा मेरे को 1000 रुपए सेंड करेगी. ये सही है. मैं पीछे से जीरो हटा दूंगी. well guys, do let us know in the comment box कि आपको सेशन के पूरा सेशन कॉन्वर्सेशन कैसा लगा. एंड यस, लाइक मैं लिंक सेंड कर दूंगा, लाइक इंस्टाग्राम का लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में पूछेगा. मेक श्योर डू फॉलो हर. एंड बहुत अमेजिंग स्टोरीज होती है, बहुत अच्छा कंटेंट है. एंड या आप इनके कोर्सेज में भी साइन अप कर सकते हो. डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको लर्निंग मिलेगी. एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी. Thank you.